हाँ जी, तो पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन यूज होती फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर असी शॉर्टकट मैथड तुहानूं दस रहा है। ये करना, तुसीं 2 मोल सोडियम लेना तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना। ओके, यू हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Okay, so what will happen? The bromine will go along with the sodium and 2 methyl will combine with each other to form an alkane. Its name is ethane. Okay, so the Woods reaction is for the formation of alkane and the final product will be of double carbon than the कार्बन प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिन्हें कार्बन अल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल कार्बन की बनेगी चेन बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जे मैं ब्रोमो इथेन ले रहा 2 मोल्स ऑफ सोडियम, फिर ब्रोमो इथेन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हाँ जी, दसो की बनेगा? ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 एंड CH3। So this reaction is for the formation of alkane. Next reaction is fitting reaction. In this reaction we will use aryl halide instead of alkyl halide. इथे किसी का ब्रोमोमीथेन, इथे की है क्लोरोबेंजीन। So we are using aryl halide instead of alkyl halide. We will take 2 moles of sodium and 2 moles of aryl halide. Okay, again the reaction in the presence of dry ether. What will happen? 2 moles of chlorine will go with the sodium and the 2 phenyl group will combine with each other. It will form diphenyl. Will form diphenyl. This is a fitting reaction. Is it clear? Okay. Next reaction is Woods fitting reaction. This reaction, in this reaction we will use 1 mole of aryl halide and 1 mole of alkyl halide. Okay, so in this case 2 moles of NaCl will form and alkyl part will combine with the phenyl part, so this will form toluene. Okay, is it clear? Now the next reaction, see, in next reaction we are doing halogenation of alkane. Halogenation of alkane. In halogenation of alkane, let's suppose you have a methane. We are treating it with chlorine in the presence of sunlight. Okay, we are not going to here perform the mechanism, but this reaction will go with the free radical mechanism. We have already discussed in the class 11th. Okay, this will go with the free radical mechanism. What will happen? 1 hydrogen go along with the chlorine, it will form HCl. 1 hydrogen from methane go along with the chlorine, it will form HCl. Now after removing hydrogen, 1 valency of methane is free, it will become methyl and 1 chlorine will go along with it, so it will form chloromethane. Right? Similarly, if we do the bromination in the presence of sunlight, it will form bromomethane and HBr. If we take iodine in the presence of sunlight, this reaction will be reversible. This reaction will be reversible. Iodine is a good reducing agent. It will go along with the iodine and move in the backward direction.
Okay, if we want to prevent the backward reaction, we have to use an oxidizing agent, which will oxidize a HI. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, HI ਨੂੰ ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके ये जो फॉस्फोरिक एसिड HI ने रिएक्ट करेगा तो आयोडीन बना देगा। तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगी क्योंकि यही नहीं अवेलेबल है, यह ख़त्म हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं मीथेन को फ्लोरीन रिएक्ट कराना, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन, इट इज़ डायरेक्ट फ्लोरीनेशन। Direct fluorination, the reaction is very explosive. So we cannot perform the direct fluorination. Okay, we will not perform the direct fluorination. Okay. हाँ जी, तो असी लास्ट reactions which देखा, with direct chlorination is possible, direct bromination is possible, but in the case of iodination the reaction is reversible. We have to add an oxidizing agent which will oxidize the HI to the iodine, right? And in the case of fluorination the reaction is very explosive, तो ऐसी reaction नहीं perform करती। Okay, so now next method is halogen exchange method. Next method is halogen exchange method. Okay, so what we do in this method, let's say you have CS3CH2Br. We will react it with sodium iodide in the presence of acetone. In the presence of acetone, बेटा जो सोडियम आयोडाइड है ना, इट इज़ सॉल्युबल इन एसीटोन, ठीक है। तो जो सोडियम आयोडाइड में असी एसीटोन च पावांगे, दोनों में एसीटोन च पावांगे, तो सोडियम आयोडाइड तो आयोडाइड आयन रिलीज होंगे, ठीक है। दे विल अटैक ऑन द कार्बन बिकॉज कार्बन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट विल हैपन, CH3CH2I प्लस NaBr, एंड जो NaBr है इट इज़ इनसॉल्युबल इन एसीटोन। तो इनसॉल्युबल होने के कारण नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ताकि रिवर्स रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है? तो बेटा हमने ऐसी इस रिएक्शन को बोलते फिंकलस्टीन रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज स्पेशली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तुम लास्ट टाइम के देखा कि अल्काइल आयोडाइड बनाते हो जो तो रिएक्शन रिवर्सिबल जाती है, ठीक है। असं इतने तो वधिया मैथड लभ्या, तो वधिया मैथड किहड़ा, फिंकलस्टीन, जिहदे विच हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। आयोडीन किहनूं एक्सचेंज कर रहा है, ब्रोमीन, समझ रहे हो? तो असी एसीटोन क्यों पाया, ताकि जो NaBr बने तो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाए, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए। ओके, नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर असी मान लो ब्रोमो इथेन ले लिया, असी इन्हूं रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो मरक्यूरस फ्लोराइड में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मरक्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो नाल असी इत्थे लेना वाटर, मरक्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड। मान लो सिल्वर फ्लोराइड लेता, सिल्वर फ्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल ब्रेक डाउन इनटू आयंस। दिस फ्लोराइड विल अटैक ऑन द कार्बन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, सो इट विल फॉर्म CH3 CH2 एंड F, और साथ नाल की निकलेगा AgBr। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ AgBr है, ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है,
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਿਹਦੇ AgBr जो ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ठीक है। तो आप लास्ट टाइम देखा जो फ्लोरिनेशन कर रहे हैं डायरेक्ट अल्केन दैट इज़ नॉट अ यूजफुल मैथड तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ अल्टरनेटिव है लगी समझ ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन सॉरी हैलोजन एक्सचेंज मेथड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन हो गया। इस तो बाद ब्रोमिनेशन of silver salt of carboxylic acid। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोमिनेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे रिएक्शन उसी हांस ड्रीकर रिएक्शन भी बोलते हैं ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CO Ag ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਣਾ Br2 ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ CCl4 ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। तो बेटा ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਸਾਲਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਲਈ ਏਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਐਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ O8 ਸਿਲਵਰ ਇਥੈਨੋਏਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨਾਲ Br2 ਜਦੋਂ Br2 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ AgBr ਬਾਅਦ ਇੱਕ CH3Br तो ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3Br ਨਾਲ CO2 ਤੇ ਪਲਸ AgBr तो है कि हुई आप इतों अल्काइल ब्रोमाइड बनाए तो हांस डी का रिएक्शन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड ठीक है कोई डाउट नहीं ठीक है। अगली रिएक्शन है अच्छा एक ना हो रिएक्शन है बॉर्न सिमोनेनी रिएक्शन ठीक है। अगर असी ब्रोमीन की जगह आयोडीन यूज़ कर लिए की यूज़ कर लिए आयोडीन ठीक है। तो ये की होंगे बेटा देखो जो असी ब्रोमीन यूज़ किया ना तो साढ़े को अल्काइल हैलाइड बन रहा है राइट जे असी आयोडीन यूज़ करांगे ना तो साढ़े को इतने एस्टर बनेगा की बनेगा एस्टर हूँ किमें बनेगा देखो CH3C डबल बॉन्ड O Ag ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੋ ਮੋਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ CH3C डबल बॉन्ड O Ag CH3C डबल बॉन्ड O Ag ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆਇਓਡੀਨ एक Ag आई ना बाहर एक Ag आई ना बाहर तो 2 मोल्स की बन गया Ag है राइट। ਹੁਣ बेटा की होएगा बाकी एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा नाल की बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बेटा देखो ਇਹ वाला मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸੀ फ्री हो गई सी ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਬਾਈਨ हो जाएगा CH3 ठीक है। तो देखो यह केड़ा ग्रुप है दिस ग्रुप इज एस्टर 1 2 की चेन है 2 की चेन के बाद मिथाइल लगा मिथाइल किन्ने चेन है 2 की 2 के लिए इथ दोनों में सिंगल बॉन्ड है एन तो इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट एस्टर लग समझ ठीक है। तो हम इनू रिप्रजेंट किमें करना तुसी रिप्रजेंट तुम ऐसा करोगे 2 मोल्स ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विथ आयोडीन इट गिव्स यू मिथाइल इथेनोएट प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ AgI प्लस CO राइट ठीक है ओके। तो बाकी आप फिर नेक्स्ट टाइम करना है।